Hi, my dear students. Welcome to MathStan. So, today we'll be talking about a very important topic that is about the prokaryotes and particularly the bacteria. What is bacteria? What is the structure of bacteria? What is the economic importance? How does it reproduce? And many other aspects related to the same. And we are going to do it in such a way that no question goes untouched after learning this topic. So, let's get started. Please take out your notebooks and pen. So, let's begin, my dear students. So, my dear students, now we will be starting up with the topic which is associated with the bacterias. Okay. So, सबसे पहले बैक्टीरिया का जिक्र किसने किया कैसे पता चला about how bacterias look, what are they an organism or not? So, let's get started with all of the stuff. First of all, if I talk about the bacteria, so bacteria came up into picture in 1676 when Anton van Leeuwenhoek discovered the bacteria using the simple microscope. And you know what? In 1864, another scientist came who is today known as the father of pasteurization. That is, with no doubt, Louis Pasteur. They said that bacteria are the one which cause diseases. So, we come to know that bacteria are small microscopic organisms. They possess some cell characteristics like having the proper cell wall. They are mostly unicellular, that means they are formed of only one cell. They lack well organized nucleus and plastids. So they don't have well defined, well organized nucleus, and some of them have plastids while others don't. So, if I say what is the study of bacteria called as? The study of the bacteria is called as bacteriology. Branch of biology that deals with the study of bacteria is, with no doubt, bacteriology. Now, let us have a look here at where they are present, how they look, and all of that thing. So, my dear students, bacteria are present universally. Okay, they are present universally. That means you will be able to find them in various regions and everywhere. And if you think that they will not be present in the saline conditions, you are wrong because they will be present there also. If you think they are not present in very hot environment conditions, you are wrong because they are also seen there. So they inhibit soil, water, air, disseminated by the wind, by water, and other agents. For example, if I have something which is infected, I carry the same to someone's home. So I'm bringing germs and bacteria to their home as well. But many parasitic, they cause the diseases to animals when many are useful to mankind. So always saying that they cause diseases is not right, okay? Because they are helpful also at the same time. They provide you so many things. So you can't say always that they are not good for us. We can't say. Let's have a look here at the size. So basically, the way we are having the diversity among us, there exists a good diversity in bacteria also. ठीक है कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं स्मॉलेस्ट बीइंग द पोजेस अ सेल मतलब एवरेज साइज का 1 माइक्रोन डायमीटर का होता है 1 माइक्रोन 0.001 का होता है देन इसकी टाइप्स आती है कोकस वो होते हैं विच आर इन द शेप ऑफ लाइक दिस बैसिलस होते हैं जो इस शेप के होते हैं रॉड शेप्ड होते हैं ठीक है सो जो ई कोलाई है दैट इज अराउंड 0.4 टू 0.7 माइक्रोन्स डायमीटर बैसिलस 3 माइक्रोन्स डायमीटर है कोकस 0.5 से 2.6 है ठीक है तो बैसिलस सबसे बड़ा होता है एंड यूजुअली आप जब कर्ड के बैक्टीरियाज देखते हो अंडर द माइक्रोस्कोप यू फाइंड देम एज द लैक्टोबैसिलस आई होप दिस इज क्लियर सो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी तो बहुत करता है ये बिल्कुल अभी चलिए बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर कैसा होता है तो सिंपल है ये आपका एक बैक्टीरिया का सेल है ठीक है मैं इसको आपको ऐसे करके बताती हूँ सिंपल रखेंगे इसको ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं करना है सबसे पहले देखें तो आपको दिखेगा सेल वॉल है सेल वॉल से भी बाहर कैप्सूल होती है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है यानी नंबर 1 दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 बीच में डीएनए है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कोई प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया का फ्लैजिला आ जाता है ये पीछे ठीक है ये पाइलस आ जाता है हमारा देन आ जाता है हमारा बीच में जेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज द साइटोप्लाज्म सो लेट्स हैव अ लुक हियर इफ आई टॉक अबाउट द सेल स्ट्रक्चर cells surrounded by a rigid cell wall made up of mucopeptide
देखो, सेल जो होता है ना बैक्टीरिया का, उसके पास एक बहुत रिजिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वॉल होती है, जो किससे बनी होती है, विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड क्या है? एक पॉलीसेकेराइड ही है, जो बैक्टीरियाज में आपको दिखता है सिर्फ। ठीक है। सेल वॉल के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड वॉल है, जो कैप्सूल बना देती है, जो उसको हार्ड बना देती है। ठीक है। लेकिन कैप्सूल लूज भी हो सकता है, म्यूसिलेजिनस भी हो सकता है, और ये एक स्लाइमी सी लेयर बना देता है कैप्सूल अराउंड द बॉडी ऑफ द सेल और बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। जिनके पास भी फ्लैजिला है ना, जैसे ये आपको फ्लैजिलास दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये जो आपको दिख रहे हैं, पाइलाई पिलाई बोलो या पाइलस बोलो, ये जो आपको दिखता है ये फ्लैजिला है। तो जिसके पास भी फ्लैजिला है वो मोटाइल होता है। ठीक है। सम बैक्टीरियाज आर मोटाइल, व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग दी, दे पोजेस द फ्लैजिला। और कुछ जो होते हैं दे डोंट हैव दैट फ्लैजिला एंड दैट अटैचमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप दिस इज क्लियर। हम्म। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अबाउट दिस पार्ट, दिस इज योर बैक्टीरियल सेल which include cytoplasm, pilus, bacterial flagellum, ribosome, DNA, plasma membrane, cell wall, capsule. So अगर आप चाहें you can take the picture of this one. Okay, you can take the picture. So next moving ahead with the flagellum. तो ये जो आपने बैक्टीरिया का एक लौता फ्लैजिला दिखा है, इसका क्या काम है? देखिए, फ्लैजिला जो होता है ना वो मोटाइल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, मतलब उन वाले बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है जो मूव करते हैं, जो मूवमेंट अलो करते हैं, दैट इज योर फ्लैजिलम। ठीक है। और ये लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह सर्व करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द मूवमेंट। ओके, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। देन द सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द बैक्टीरियल सेल। जितना साइज बैक्टीरिया का है उससे काफ़ी ज़्यादा लंबे ये होते हैं। ठीक है। Then they are cylindrical and hollow filament made up of protein molecules. This is called as flagellum. Again I'm repeating, cylindrical और hollow filament होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना है, जिसको आप बोलते हैं फ्लैजेलिन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन। सो फ्लैजेलिन मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड, मतलब 3 से 8 रोज में लॉन्गिट्यूडनली वो अरेंज होता है। और जो रोज होती हैं मॉलिक्यूल्स की ना, वो ट्वाइन करती हैं अराउंड द हेलिकेसेस। तो अगर आप ध्यान से फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, यहाँ पर आपको एक मिलेगा, कॉलर मिलता है, आपको हुक मिलती है। ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस। फ्लैजिलन मॉलिक्यूल्स लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं 3 से 8 रोज में। रोज ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्वाइन अराउंड द हेलिकेसेस। और आपके सीएस में 8 फ्लैजिलन मॉलिक्यूल्स डिस्पोज होते हैं। फ्लैजिलन की 3 यूनिट्स होती हैं जो मैंने आपको बताई, हुक, फिलामेंट और बेसल बॉडी। ठीक है। बेसल बॉडी होती है, हुक होती है और फिलामेंट होती है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। अब अगर कोई आपसे पूछे ना बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में, तो सिंपल रखेंगे और यही बताएंगे कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह सर्व करता है, हेल्प करता है लोकोमोशन में। ठीक है। ऑफन बड़ा लॉन्ग होता है, समटाइम अपने सेल से भी लंबा होता है, बिल्कुल होता है। फ्लैजिलम सिलेंड्रिकल होता है और हॉलो भी होता है। ठीक है। मतलब सिलेंड्रिकल शेप हो गई और अंदर से वो क्या है, हॉलो भी है। ओके, नाउ दैट इज मेड अप ऑफ दी प्रोटीन ऑल्सो। किससे बना हुआ है ये? प्रोटीन से भी बना हुआ है ना। अब जब ये प्रोटीन से बना हुआ है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स कि ये किससे बना हुआ है। ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन का नाम होता है फ्लैजिलिन। क्या नाम होता है? फ्लैजिलिन। ठीक है। अब ये जो आपका फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनली रोज में, 3 से 8 रोज में। रोज जो है वो ट्वाइन करती हैं अराउंड एज हेलिकेसेस। और आपका बैक्टीरियल फ्लैजिला क्रॉस सेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैजिला के पास 3 मेन पार्ट होंगे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है और फिलामेंट सरफेस के साथ होता है। तो हुक इस तरह से अरेंज होती है। यहाँ देखो, ये आपका फ्लैजिलम है, इसका
इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द फिलामेंट। फिर यहाँ पर ये हुक रीजन आता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर देखो ये रॉड है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ किस तरह से एम्बेडेड है। तो अटैच कहाँ पर हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये अटैच हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो आपके बैक्टीरियाज डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका फ्लैजिला अरेंज कैसा है, कैसे अरेंज है, आई मीन इट कैन बी मोनोट्राइकस, इट कैन बी लोफोट्राइकस, इट कैन बी एम्फीट्रिकस और इट कैन बी पेरिट्राइकस। अब ये पिक्चर से ही एविडेंट हो रहा है आपको, यहाँ देखो ये इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला, लोफोट्राइकस बहुत सारे फ्लैजिलाज निकल रहे हैं, एम्फी दोनों साइड से ही निकल रहा है फ्लैजिला, पेरिट्राइकस पूरी बॉडी से, पर्टिकुलरली थ्रू आउट द बॉडी ये क्या कर रहा है? रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर एट द पिक्चर्स। ये आपके कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर्स ली हुई हैं व्हिच कैन हेल्प यू। आई होप दिस इज क्लियर। ना फिम्ब्राई और पिलाई दो चीजें हैं, ऑफन वी गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो इसकी कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी। लेट्स हैव अ लुक हियर। फिम्ब्राई जो है या जो पिलाई है, दोनों कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रहे हैं लोकोमोशन में, लेकिन डिफरेंस तो है। सरफेस अपेंडेजेस हैं जो यूज की जाती हैं दोनों के द्वारा, सेल टू सेल कांटेक्ट करते हैं या सेल टू सरफेस कांटेक्ट करने के लिए। दोनों प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। फिम्ब्रे जो हैं वो शॉर्ट होते हैं और बहुत सारे होते हैं, आई मीन न्यूमरस होते हैं। ओके, पिलाए जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और लेसर होते हैं नंबर में, रिजिड भी होते हैं और ट्यूबुलर भी होते हैं, ठीक है। और किससे बने हैं? पिलाइन से बने हैं। फ्लैजिला कौन से प्रोटीन से बना था? फ्लैजिलिन से। पिलाई यूजुअली किस में इन्वॉल्व होते हैं माय डियर स्टूडेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या काम करते हैं? सेक्स पिलाई बनाते हैं। अब आप खुद कंसीडर करेंगे, अगर आपका यहाँ पर एक बैक्टीरिया है और दिस इज द अनदर बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एक कनेक्शन बनता है, वो कनेक्शन कौन बनाता है? सेक्स पिलाई, ठीक है। पिल्लाई जो है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और यह फिम्ब्रे जो है वो किस में हेल्प करता है? फिम्ब्रे इज हेल्पिंग मोर इन व्हाट? फिम्ब्रे लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसे आप बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि स्लाइम लेयर होती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? दैट ग्लाइकोकैलिक्स इज समथिंग, ग्लाइकोकैलिक्स इज एक्चुअली व्हाट? पॉलीसेकेराइड है ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, और ये बैक्टीरिया को अटैच कर देता है टू द सरफेस, ठीक है। और ये फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल तो है इसके पास, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, तो इसको इस ग्लाइकोकाइलिक्स की या इस स्लाइमी लेयर की ज़रूरत क्या पड़ी? सो उसको ज़रूरत ये पड़ती है दैट इट इज़ द वन जो कि सरफेस के साथ एडहेयर कर देता है, बैक्टीरिया को सरफेस के साथ करेगा एडहेयर, और ये फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता बैक्टीरिया की, ठीक है। सो दैट इज इट्स रोल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द बैक्टीरिया। जब भी हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट वन थिंग विच इज़ ग्राम स्टेनिंग। हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की, और हमने सुना भी हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग, ऐसा करके सुना है हमने, बिल्कुल सुना हुआ है। सो अब समझते हैं हम यहाँ पर कि एक मेथड है जिससे हम बैक्टीरिया को स्टेन कर सकते हैं और कैटेगराइज करा सकते हैं, और ये बता सकते हैं दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? बैक्टीरिया का पॉजिटिव होना और बैक्टीरिया का नेगेटिव होने का क्या मतलब बनता है? सो बेसिकली जब मैं ग्राम स्टेनिंग की बात करती हूँ, सो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम। और बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? स्टेन को लेता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट इन द सेल वॉल, ठीक है। सो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं? स्टेन लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन जो कि स्टे सेल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर तो पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है तो रिजल्ट अलग आएगा, और अगर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है तो रिजल्ट अलग आएगा। देखो कैसे, आपके पास दो अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी के, आपको नहीं पता ये क्या है।
आपने सबसे पहले बैक्टीरिया को फिक्स किया, क्रिस्टल वायलेट स्टेन लिया, आयोडीन से उसको ट्रीटमेंट दिया, फिर उसकी डीकलराइजेशन हुई और आपने फिर काउंटर स्ट्रेन डाला उसमें, स्टेन सैफ्रनिन। स्टेप याद रखना, ये स्टेप पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिक्सेशन करके क्रिस्टल वायलेट डाई डाल दो, फिर आयोडीन ट्रीटमेंट करो, फिर उसके बाद डीकलरेशन करो और फाइनली आप क्या करेंगे, कलर स्टेन करेंगे, उससे सैफ्रनिन कलर डाल देंगे। अब जब इतना हो जाता है फिर क्या होगा, यहाँ पर रोल होता है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि इम्पैक्ट करती है और अलो करती है टू दैट टू लाइक बैक्टीरिया टू एक्ट एज वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और इट इज ग्राम नेगेटिव। ठीक है। लिमिटिंग लेयर जो होती है साइटोप्लाज्म की, उसको हम देखते हैं इनसाइड द सेल वॉल। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, वो डिफरेंशियली परमिएबल होती है। ये प्रोड्यूस करती है कुछ इनफोल्डिंग्स टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, जिसको हम मेसोसोम बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखेंगे कि जो मेसोसोम्स होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो अगर आपका यहाँ स्ट्रक्चर हो तो आई कैन टेल यू मोर बेटर। एक सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड। आई थिंक इट वॉज हेयर, ऊपर है। यहाँ पर आपको अच्छे से मैं दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जैसे मेम्ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने होंगे, रेज्ड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं, रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होते हैं। ठीक है। सो मेसोसोम्स की बात समझ आ गई, ये एक बार पूछा भी गया है मेसोसोम्स के बारे में। अब आप याद रखें, सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बनी हुई है, साइटोप्लाज्म से बनी हुई। साइटोप्लाज्म की लिमिटिंग लेयर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, दैट मीन्स वो प्रोटीन्स की बनी है और कुछ सेक्राइड्स की बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है। तो मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल है, मेसोसोम्स होते हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। बात करते हैं अगर हम साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आपके लिपिड्स हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, राइट। और ये क्या है, ये नॉन लिविंग स्टोरेज सब्सटेंसेस होते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, और यहाँ पर भी राइबोसोम्स जो होते हैं वो कौन कैसे होते हैं, लाइक दे आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज। ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, वहां पर वी हैव क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो उसको कलर इनबिट करने में हेल्प करते हैं, कलर को एग्जिबिट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। आप देखेंगे कुछ पानी आपको बहुत रेड दिखेगा, वो रेड एल्गा की वजह से। ठीक है। थैलोफाइट्स वहां प्रेजेंट होंगे। सो बेसिकली कलर जो है वो इस पिगमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है। जैसे कि क्रोमेटोफोर्स होते हैं और वो भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, वो डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एब्सेंट। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड जो आपके ऑर्गेनेलिज हैं वो यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते ना, तो देयर वुड हैव बीन चांस कि न्यूक्लियस भी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता, बट ऐसा नहीं है। जिसकी बात कर रहे थे उसी का ही रेफरेंस आया, दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोइड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं बोला जाता, यहाँ बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो हम बोले कि भाई हाँ प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ है, वो चीज तो है ही नहीं है। सो सिंस जो सेल है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो कोई भी डेफिनेट न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पार्ट। So since the cell is prokaryotic, there is no definite nucleus. Genetic material lies free in cytoplasm in the form of closed ring. It is a double-stranded closed DNA ring which is called a genophore. तो डबल स्ट्रैंडेड जो क्लोज्ड आपको डीएनए रिंग मिलती है उसे क्या बोलते हैं, जीनोफोर। ठीक है। और डीएनए जो है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स आल्सो, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स है ही नहीं, इसके पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ही नहीं है प्रॉपर, तो हाउ कैन इट फॉर्म विद दैट। गेटिंग माय पॉइंट। टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मिड एंड एपिसोम, प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए आपने सुना है हर जगह, प्लाज्मिड नहीं सुना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होता है यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल जो है, न्यूक्लियस के साथ कुछ प्लाज्मिड भी है, न्यूक्लियोइड के साथ प्लाज्मिड भी है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहाँ प्रेजेंट है। और ये प्लाज्मिड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। फर्टिलिटी फैक्टर, रेजिस्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सो प्लाज्मिड छोटा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने बोला फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। प्लाज्मिड्स एट टाइम्स क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट के डीएनए के साथ और फिर उसे एपिसोम बोलते हैं। जब आपका प्लाज्मिड डीएनए के साथ जब मिक्स हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, उसको बोलते हैं एपिसोम। जैसे जब मैंने फॉर एग्जांपल दो बैक्टीरियाज लिए, एक बैक्टीरिया और ये दूसरा बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो रही है, मतलब इसका जो क्या है बीच में क्या बना है, देर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ सम काइंड ऑफ सेक्स पिलस बन गया है और मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। तो अब आप सोचो कि ये जो प्लाज्मिड है इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दूसरे वाले के जेनेटिक मटेरियल के साथ जब बाइंड कर देगा तब हम उसे बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड एज एपिसोम। सो एपिसोम और मीजोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है। मीजोसोम जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है फॉर रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और एपिसोम जो है वो डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ जब आपका प्लाज्मिड इंटीग्रेट करता है उसे कहते हैं। सो नाउ इज योर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं बेस्ड ऑन कि उसके पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने बताया था, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। ओके, नंबर वन इज योर एफ प्लाज्मिड, देन इज योर आर प्लाज्मिड एंड यू हैव कोल प्लाज्मिड। ठीक है, तीन मेन टाइप्स के प्लाज्मिड्स आपके सामने हैं। नंबर वन, एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन फैक्टर्स। ठीक है, सेल्स जिनके पास एफ प्लाज्मिड होता है उसको एफ पॉजिटिव सेल्स बोलते हैं और वो मेल्स कंसीडर किए जाते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास एफ पॉजिटिव नहीं होता, उसको एफ मतलब जिसके पास एफ नहीं है, ये वाला प्लाज्मिड नहीं है, उसको बोलते हैं एफ नेगेटिव, और उनको हम यूजुअली क्या कंसीडर करते हैं, फीमेल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, समटाइम्स देयर एग्जिस्ट एज एपिसोम, एपिसोम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जब आपका जो डीएनए है वो प्लाज्मिड के साथ जो है वो इंटीग्रेट होकर रहता है, दैट इज एचएफआर सेल्स। सो एचएफआर सेल्स हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स होते हैं। आर प्लाज्मिड की अगर बात करें तो ये जीन करता है कंसीडर जिसमें कि रेजिस्टेंस होती है एंटीबॉडीज के लिए। कोल्ड प्लाज्मिड जो है वो कंटेन करता है कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को। ठीक है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे आपके कॉलिसेंस हो गए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हैव अ लुक हियर। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, बैक्टीरियाज हैं। Bacteria can be of different types. They occur in different shape and they occur in different sizes also. Okay, so we have unicellular eubacteria, we have eubacteria, you have coccus, bacillus, vibrio, spirillum filamentous, you have spirochetes, you have myxobacteria. तो हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। Okay, so let me come you through this one, that is unicellular eubacteria. सो यूनिसेलुलर यू बैक्टीरिया शेप्स और साइज में डिफर करते हैं। कोकस टाइप हो सकते हैं, सफेरिकल इलिप्टिकल सेल्स होते हैं ये कोकस वाले, नॉन मोटाइल होते हैं, या तो ये सिंगल एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर सिंगल होंगे तो बोलेंगे माइक्रोकोकस, पेयर में होंगे तो बोलेंगे डिप्लोकोकस। ठीक है, ये चीज़ इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज समटाइम्स इनको चेन्स में अगर एग्जिस्ट करेंगे ना तो स्ट्रेप्टोकोकस बन जाते हैं। सो तीन टर्म्स हैं आपको याद रखनी है। नंबर वन, अगर सिंगल है तो माइक्रो, ठीक है, अगर वो डबल हैं पेयर में है तो डिप्लो, और अगर वो चेन्स में है तो स्ट्रेप्टोकोकस। कई बार वो क्लस्टर में फॉर्म होते हैं और अगर क्लस्टर में फॉर्म होंगे यू विल कॉल देम स्टेफिलोकोकस, सिंपल एज दैट। आई होप दिस मच इज क्लियर। Understood this much? Mm-hmm. So now have a look here. This is the thing that is your streptococci, diplococci. देखो स्ट्रेप्टो चेन्स में है, क्लस्टर्स में दो के ग्रुप में है, डिप्लो हो गया। ठीक है, अब अनदर टाइप आता है आपका यूनिसेलुलर यू बैक्टीरिया, जिसमें यू हैव बैसिलस टाइप बेसिकली, और आपके पास आता है बेसिलस टाइप में ये रॉड शेप होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, कर्व्ड होते हैं। कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं ये, विद डायमीटर ऑफ 1.5 टू 10 माइक्रॉन्स। ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 1.5 टू 10 माइक्रॉन्स। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैं बात करती हूँ ना इसकी, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस वन, सो व्हाट डू वी से, हम यहाँ पर क्या समझते हैं,
देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये क्या है, ये रॉड शेप्ड हैं, स्ट्रेट हैं, कर्व्ड हैं, कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसका डायमीटर 1.5 टू 10 माइक्रॉन्स होता है। मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल फॉर्म्स भी प्रेजेंट होती हैं, यानी मूव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। समटाइम्स दे अकर इन द चेन्स ऑल्सो, और उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, और इसकी वन ऑफ दैट एग्जाम्पल इज योर स्टेफिलोबैसिलस। Okay, you need to understand this part. Okay, I hope this is clear. Let's move with the next one now. Now is your unicellular eubacteria. So, unicellular eubacteria, if I say, you have to understand. We have spirillum type. Okay, spirillum type जो होते हैं वो twisted होते हैं और स्पाइरली होते हैं इस तरह से ताकि वो दिखते कैसे कि कॉर्क का स्क्रू है। लेंथ इसकी रेंज करती है 10 से 55 माइक्रॉन्स के बीच बीच में। अब इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है। विब्रियो टाइप में एग्जांपल आती है विब्रियो स्पीशीज की, और ये शेप क्या होती है, कॉमा शेप्ड होते हैं या कर्व्ड प्लेट्स होती हैं। सिंगल फ्लैजिला होता है और इट इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द बॉडी। फाइनली वी हैव द फिलामेंटस टाइप, जिसे आप माइसीलियल बैक्टीरिया बोलते हो, एंड दैट हैज अ फिलामेंटस टाइप ऑफ बॉडी। ओके, सो दैट इज वन पॉइंट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जो यूनिसेलुलर यू बैक्टीरिया है ना, इसमें एग्जांपल आती है स्टार्क बैक्टीरिया नंबर 1, और नंबर 2 आता है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। ओके, नाउ वी नीड टू हैव अ लुक हियर एट दिस पार्ट कि जो स्टार्क्ड बैक्टीरिया होता है दैट इज व्हाट। ओके, स्टार्क्ड बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से होते हैं, जिनकी स्टिकी नॉब होती है बेस में और अटैच हो जाते हैं वो बेस में। बाय एग्जांपल इज योर कोलोबैक्टर। प्लियोमॉर्फिक में वे अपनी प्लियोमॉर्फिज्म होता है, यानी शेप चेंज कर सकते हैं, साइज शेप कर सकते, शेप और साइज दोनों चेंज कर सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे। जैसे कि एग्जांपल आती है आपकी एसिटोबैक्टर। ओके, सो दिस इज अबाउट यूनिसेलुलर यू बैक्टीरिया। नाउ यू हैव स्पायरोकाइटीज। स्पायरोकाइटीज थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि लॉन्ग होते हैं, लार्ज बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पाइरल्स बनाते हैं। दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें, मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट की कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट की वजह से ये क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। ओके, एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स ऑफ द फिलामेंट्स ऑल्सो। फिलामेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रिस्टा। तो एग्जाम्पल आती है स्पायरोकाइटा, बैक्टीरिया का नाम है। स्पायरोकाइटीज जो है वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। I hope this is clear. Now let's have a look here at the myxobacteria. Let's have a look here at the myxobacteria. Okay. मीजोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सो कोई भी सेल वॉल और फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ग्लाइडिंग मोशन होता है यहाँ पर, रॉड स्ट्रेट होती हैं। ओके, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नो सेल वॉल एंड फ्लैजिला, कैरेक्टरिस्टिक ग्लाइडिंग मोशन, स्ट्रेट रॉड होती है और वो भी कॉमन म्यूसिलेज प्रेजेंट होगी। स्लाइम जो है वो हार्ड हो जाता है और वो क्या करता है, इंशीथ करता है बैक्टीरिया को इन अनफेवरेबल कंडीशंस, एंड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस दे लिबरेट द बैक्टीरिया। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि स्लाइम जो है वो हार्ड हो जाता है। Let's have a look here at the next one.
स्लाइम बिकम हार्ड इन शीट्स द बैक्टीरिया एंड देन दैट बिकम्स फेवरेबल, तो कंडीशंस में वो लिबरेट कर देता है, जैसे प्रोटेक्शन कर रहा है अपने आप को। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेस्ड ऑन द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, वी हैव कोकस शेप, सर्कुलर और कोकोइड, बैसिलस रॉड शेप्ड, कोकोबैसिलस, विब्रियो, स्पाइरुलम, स्पाइरोकीट, स्क्वायर और स्टार। ओके, सो कोकस सर्कुलर होता है, चेन में स्ट्रेप्टोकोकस एग्जाम्पल आती है, क्लस्टर में स्टेफिलोकोकस आती है, बैसिलस रॉड शेप्ड एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबैसिलस, और कोकोबैसिलस में विब्रियो कर्व्ड कॉमा लाइक, स्पाइरुलम स्प्रिंग लाइक, स्पाइरोकीट स्क्री लाइक, स्क्वायर है और स्टार है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ हैव अ लुक हियर एट द बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। ओके, बैक्टीरिया मेनली क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सिंस इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते। कुछ होते हैं जो क्लोरोफिल को भी इन्वॉल्व रखते हैं, मतलब कुछ में क्लोरोफिल होती है और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक फॉर्म्स भी प्रेजेंट होती हैं, यानी वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय ऑक्सीडेटिव एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द केमिकल मीडिया, तो उस पे एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कीमोसिंथेटिक हो गए। ओके, एंड वी हैव हेट्रोट्रॉप्स जो कि पैरासाइट्स की तरह या फिर सेप्रोफाइट्स की तरह एग्जिस्ट भी करते हैं, यानी वो पैरासिटिक भी हैं और सेप्रोफिटिक भी हैं। दैट इज अबाउट योर heterotrophs. I hope this point is clear nicely. Mm-hmm. So let's have a look at the heterotrophic bacteria. My dear students, it's very obvious कि heterotrophic जो है autotrophic से different होता है, right? So we have saprophytic bacteria. Okay, we have saprophytic bacteria. Saprophytic bacteria में we have the bacteria which live in dead organic matter of plants. ठीक है, जो यहाँ पर वो होगा which are like, yes, which are like बैक्टीरिया लिव करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर में। So we have to understand कि enzymes which are produced by the bacteria, they degrade the organic matter. So breakdown होता है proteinaceous material का, उसे बोलते हैं putrefaction. Important है। Okay, we need to understand it is putrefaction. So let's have a look here, my dear students. When it comes to saprophytic bacteria, the bacteria live in the dead organic matter of the plant and the animals. So enzymes produced by bacteria degrade the organic matter और फिर putrefaction होती है। ठीक है, सो जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। So we need to understand here नेक्स्ट कम्स योर फर्मेंटेशन भी हो गया जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब नाम से आपको पता चलना चाहिए पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होगा? पैरासिटिक बैक्टीरिया पैरासाइट होगा, होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप होगा, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड टू दी पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप। सो पैरासिटिक में क्या है? ये ग्रो करते हैं एज पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, यानी डिजीज कॉज करके उनको डैमेज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, डेथ भी कॉज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ देम तो डिजीज कॉज करते ही हैं। कुछ जो है होस्ट के अंदर सिम्बायोटिकली भी रहते हैं, तू मेरा फायदा कर, मैं तेरा फायदा करूंगा। वो बैक्टीरियाज जो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, ठीक है, ऑफ द होस्ट, ओके, जो भी बैक्टीरिया लिव करते हैं विद इन द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट, वो
वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे राइजोबियम की अगर बात करूँ, वो रूट नोड्यूल्स को इनहिबिट करता है और वो सिम्बायोटिकली ग्रो करता है। पैरासिटिक फॉर्म्स की अगर हम बात करें, सो इट अटैक्स द होस्ट प्रोड्यूसिंग डिजीजेज ऑल्सो। सो कुछ प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, जो होस्ट के मेटाबॉलिक पाथवे को इम्पैक्ट भी कर सकता है। ओके, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो ग्लो, दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये मेटाबॉलिक पाथवे को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिम्बायोटिकली जो है एसोसिएट करेंगे और सिंपली वो सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरे को भी सर्वाइव करवा रहे हैं। सिंपल। नाउ कॉमन डिजीजेज हैं ह्यूमंस की जो बैक्टीरिया से कॉज होती है, जैसे कॉलरा, टेटनस, न्यूमोनिया, डायपथेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारी और भी। कुछ कॉमन डिजीजेज हैं प्लांट्स की, जैसे सिट्रस कैंकर, कैबेज रॉट, पोटैटो ब्राउन रॉट, कॉटन एंगुलर लीफ स्पॉट, ये सब प्लांट्स की डिजीजेज हैं बैक्टीरिया से कॉज होने वाली। ओके, so this is one important thing. Now coming to the next one, we have the autotrophic bacteria. बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं क्या करने के, प्रोड्यूस करने के लिए देयर ओन फूड, यानी वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं। इनके पास पिगमेंट्स हैं, इनके पास फोटोसिंथेसाइज करेंगे ये, और हायर प्लांट्स की तरह ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गए। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियोक्लोरोफिल है, और जो आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उसके पास क्लोरोबियम क्लोरोफिल है। तो ये याद रखेंगे किसके पास बैक्टीरियोक्लोरोफिल और किसके पास क्लोरोबियम क्लोरोफिल है। कुछ बैक्टीरियाज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल केमिकल ऑक्सीडेशन करते हैं सब्सटेंसेस की जहां पर वो लिव करते हैं। जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना ऑक्सीडेशन से, ब्रेकडाउन से, उससे वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे और उससे उनकी पूरी प्रोसेस चलती है। तो सिंस ये एक केमिकल पर एनर्जी है, मतलब आपके प्रोडक्शन कैसे हो रही है केमिकल एनर्जी की, ब्रेकडाउन ऑफ फूड से, थ्रू केमिकल फूड से, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस। नाउ देर आर सम सब्सटेंसेज जो ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे फेरस आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रेट्स, और केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बनते हैं। एग्जाम्पल में आपका आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और बहुत सारे और। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में, जो लोगों को लगता है कि इट इज़ ओनली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बट नहीं, ये एसेक्सुअल मोड भी करता है परफॉर्म, ये वेजिटेटिव भी करता है, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी करता है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी सेगमेंटेशन बडिंग आता है, एसेक्सुअल में एंडोस्पोर और कोनिडियम से बनेगा, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन से। पहला समझते हैं बाइनरी फिजन में क्या होता है। सिंपल है, वन सेल डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू टू मेन। सेल डिवीजन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा क्विक होता है, 10 मिनट में आप देखोगे रिप्रोडक्शन खत्म। एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है टू में, ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर सेल डिवाइड करता है। सेगमेंटेशन में क्या होगा, सेगमेंट्स होंगी, टूट जाएगा एक बैक्टीरिया, उसके बीच में क्या होगा, इस तरह से सेगमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी सेगमेंट्स होंगी उतना एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बॉडीज होती है जो सेगमेंट से बनती है, उसे बोलते हैं गोनीडिया। बडिंग, बड बनना, रॉड शेप बैक्टीरिया में ज़्यादा दिखता है, छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं, लेटर ऑन बर्ड सेपरेट करते हैं जैसे यीस्ट में होता है, फिर ये डेवलप कर जाते हैं इनटू द अनदर बैक्टीरिया। कोनिडियम फॉर्मेशन आपको फिलामेंटस ब्रांच्ड बॉडी में दिखता है, ठीक है। छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिन्हें आप कोनिडिया बोलते हो, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। कंडीशंस फेवरेबल होंगी, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा आपका बैक्टीरिया। एंडोस्पोर्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं। दे आर नॉट ओनली थिक वॉल्ड बट ऑल्सो, हाँ, दे आर ऑल्सो व्हाट, थिक वॉल स्पोर्स भी हैं, इनसाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे ये बनते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तो देन व्हाट हैपन्स, इट टर्न्स बैक टू द फॉर्म, और ये क्या फॉर्म ले लेता है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फिर ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आपको याद रखना है, जितने भी अभी तक हम पढ़ते हैं ना, वी अंडरस्टैंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज
हम यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखते हैं, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी जितने भी एंडोस्पोर्स होंगे यहाँ पर, जितने भी एंडोस्पोर्स होंगे वो बेसिकली हार्मफुल कंडीशन से बचने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए अपने आप को इस तरह से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, कमिंग टू योर सेक्शुअल काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब सच में सबसे ज़्यादा, विच इंक्लूड नंबर वन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो अगर मैं बात करूँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होता है डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, दो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं और ये इसमें प्रोसेस होगा। ठीक है, अभी सिंपल रख के इसको समझते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो ट्रांसफ़र कैसे होता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ट्रांसफ़र डोनर डीएनए जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है रेसिपिएंट सेल में, और वो क्या करता है, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को क्या करता है, वो इन्हांस करता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्जुगेशन है या ट्रांसडक्शन है या फिर जो आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब क्या है, दीज आर सम ऑफ द सिंपलर स्टेप्स टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अभी अगर हम यहाँ ध्यान दें, वी विल अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स अबाउट, वी नीड टू लुक अबाउट द कॉन्जुगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जीन ट्रांसफर होता है। ठीक है, डोनर से रेसिपिएंट सेल में जाता है, ओके, बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल्स। सो मेटिंग होती है इन बैक्टीरियाज में, सिंपल है, देयर इज द मेटिंग बिटवीन द टू। ठीक है, डोनर होता है, रेसिपिएंट होता है। जो आपका डोनर है ना, दैट इज एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, इसके पास एफ होता है, यानी एफ सेक्स पिलसिस में होता है। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, yes, we need to understand यहाँ पर that it is basically related to what? It is related to your F फैक्टर, और रेसिपिएंट वाले में F फैक्टर नहीं होता, जिसके पास F फैक्टर है वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये देखो, इसके पास F फैक्टर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, और फिर ये F फैक्टर क्या करेगा, आहिस्ते आहिस्ते यू वुड सी कि ये F फैक्टर यहाँ जाएगा, इसने ये इस F पॉजिटिव ने क्या कर दिया, इसको भी F पॉजिटिव बना दिया, मतलब नेगेटिव को इसने भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? This is about one of the important thing. I hope this is clear. I hope this is clear. All right. Now let's have a look here with the next one, which you understand. Okay. चलिए, अभी हम समझते हैं यहाँ पर अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज योर माय डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको नहीं समझ आती तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट खोलें तो पूरा समझ आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या एक्चुअल में होता है या हुआ। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया में हमने देखी, और ग्रिफिथ ने सबसे पहले किया 1928 में। न्यूमोकोकस न्यूमोनिया है जिसने न्यूमोनिया को कॉज किया है। ठीक है, दैट इज वन थिंग, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ वी हैव, ये क्या करता है, ये न्यूमोनिया कॉज करता है। ओके, ये क्या करता है, ये न्यूमोनिया कॉज करता है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट वन, दैट इज योर न्यूमोकोकस न्यूमोनियाई, न्यूमोनिया कॉज करता है। इसमें आपके पास कुछ वरुलेंट भी आते हैं और कुछ नॉन वरुलेंट केसेस भी आते हैं। ओके, जो वरुलेंट की बात करूं अगर मैं, तो वरुलेंट कौन से होंगे, वरुलेंट विल बी समथिंग विच विल कॉज डिजीज। नॉन वरुलेंट होंगे जिन्होंने डिजीज कॉज करनी ही नहीं है, वो स्ट्रेन्स होंगे बैक्टीरिया के। सो ये मॉर्फोलॉजी में और कॉलोनी के कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं। वरुलेंट फॉर्म्स जो हैं वो क्या कर सकती है, कुछ पॉलीसेक्राइड रिलीज करती है, कैप्सुलिन वगैरह, और अदरवाइज जो है उन्हें क्या बोलते हैं, स्मूथ टाइप बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। I hope this much is clear, my dear students. Now let us have a look here, which includes the important thing. Okay, that is that is your
एवेरुलेंट स्ट्रेन्स, एवेरुलेंट स्ट्रेन्स इनकैपेबल हैं, वो कैप्सूल प्रोड्यूस नहीं करते और रफ कॉलोनी बनाते हैं मीडियम में। ये स्ट्रेन्स रफ टाइप के होते हैं, इनको जब इंजेक्ट करते हैं माइस में ना तो ये उसे किल कर सकता है। हीट वरुलेंट उसको कोई हार्म नहीं करता, लेकिन ए वरुलेंट जो है वो भी हार्म नहीं करता। बट अगर आपने हीट किल्ड और लिविंग को अगर आपने इकट्ठा कर दिया, एक तो हीट किल्ड है उसको तो डिजीज कॉज करनी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरा वाला जो है वो क्या कर रहा है, दूसरा वाला जो है वो डिजीज कॉज कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या समझ आती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट इट इज बेसिकली व्हाट, कि जो आपका एसोसिएशन है हीट किल्ड वरुलेंट और जो आपने लिविंग ए वरुलेंट लिए वो क्या हो गए, वो दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए। और ग्रिफिथ ने जब आइसोलेट किया तो देखा कि डिजीज तो कॉज हो रही है। अगर डिजीज कॉज हो रही है तो मतलब क्या हुआ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपका जो डिजीज जो हीट रेजिस्टेंट वाला जो आपने हीट किल करके रखा था वो एक्टिवेट हो गया। तो यानी तभी कहते हैं ना कि एक तालाब में अगर गंदी मछली हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देगी, राइट। सो सिमिलर केसेस हेयर ऑल्सो। ओके, finally my dear students, you have transduction to follow up. Portion of genetic material gets incorporated from one bacterium into another through the agency of bacteriophage. और वायरस जो है वो क्या करता है, वो इन्फेक्ट कर देता है किसको, बैक्टीरियम को। ठीक है, देन हमारे पास आता है जिंडर एंड लेडरबर्ग। क्या आता है, जिंडर एंड लेडरबर्ग आ जाता है। Okay, so when we talk about the Zinder and Ledenberg, we need to understand one important thing, that is your portion of genetic material gets incorporated from one bacterium to the another through the agency of bacteriophage। और वायरस जो है वो क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है बैक्टीरियम को। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, दो म्यूटेंट वैरायटीज या स्ट्रेन्स को प्रोड्यूस किया साल्मोनेला को। एक को ट्रिप्टोफैन दिया और दूसरे को हिस्टाडीन की जरूरत थी। दोनों को टेम्परेट फेज से अटैक करवाया तो देखा क्या गया कि दोनों के दोनों स्ट्रेन्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिल्टर अलो नहीं करता बैक्टीरिया को कि उससे पास करे। सो इन स्ट्रेन्स को किसकी जरूरत नहीं थी, ट्रिप्टोफैन और हिस्टाडीन की नहीं थी। फेज जो प्रेजेंट था मीडियम में यू शेप ट्यूब का, वो अटैक कर रहा था वन स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम। तो जब वो मल्टीप्लाई करते हैं डीएनए का पोर्शन जो है वो क्या करता है, स्ट्रेन का पास करता है इनटू फेज और नया फेज फॉर्म हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अगर बैक्टीरियाज की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियाज डिजीज कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में, हाँ करते हैं। मैन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल और प्लांट वर्ल्ड जो है बैक्टीरियाज पे हाईली डिपेंड करता है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी करानी हो नाइट्रोजन के लिए, आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया है वही काम करता है। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, अमोनिया को अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करना अमोनिया में बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का काम है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स में फॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स को सॉइल में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने बताया आपको। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए अगर कोई नहीं होगा तो सॉइल स्कैवेंजर्स कौन काम करेंगे, वही है। ठीक है, बैक्टीरिया इंडस्ट्रीज में टैनिंग ऑफ लेदर, रेटिंग ऑफ लेदर, फाइबर्स, लाइनेन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्योरिंग ऑफ टोबैको, इन सब के लिए यूज होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड के लिए। ठीक है, मेडिसिन में आपके ओरेमाइसिन, टेरामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, एथ्रोमाइसिन, कार्बोमाइसिन, बहुत सारी और आपकी एग्जांपल्स आती हैं। हार्मफुल जो डिजीज कॉज करते हैं, आप प्लांट्स में देखें, एनिमल्स में देखें, फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, डिनाइट्रिफिकेशन। आर्के बैक्टीरिया सबसे पुराना वाला बैक्टीरिया, सबसे ओल्डेस्ट टाइप का बैक्टीरिया है। इसके पास सेल वॉल होती है जो कि प्रोटीन से बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड से बनी हुई है। सो इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर और कोल्ड ऑल्सो। वाइड रेंज ऑफ पीएच में ये एग्जिस्ट करता है, जैसे आपका मिथेनोजेंस हो गए, मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विच आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। Okay, so we need to understand that bacteria are really very important at the same time. So what do we understand by all of this is, ये आर्के बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है, पुराना है बैक्टीरिया। सेल वॉल मेड ऑफ प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड है, और हाई टेम्परेचर और कोल्ड को भी विथस्टैंड कर सकता है। नो नॉट ओनली दिस, ये अलग अलग पीएच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मिथेनोजेंस, जैसे मैंने आपको बताया, जो मिथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे एनारोबिकली, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, और क्या करेंगे, मिथेन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। मिथेन गैस बायोगैस प्लांट में यूटिलाइज होगी इन फॉर वेरियस पर्पसेस। सो दिस इज अबाउट ऑल ऑफ योर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के कौन कौन से टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन देयर शेप्स, व्हाट आर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजिला, पिलाई,
कैप्सूल ग्राम स्टेनिंग, ओके। देन हमने इसके बारे में और क्या पढ़ा, टाइप्स पढ़ी, शेप पढ़ी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज आई सेड, reproduction most importantly, तीनों टाइप की reproductions. So my dear students, this is all for everything we have done. Make it very sure that you know read all of those things nicely, अच्छे से आप करें, and make it very sure to stay tuned with us as well. So we'll be coming up with the next topic in the next class. Till then, please take care, have a wonderful day, bye bye.